Hello everyone, welcome to my channel North Star Light Tarot 1412. So today's pick a card reading is going to be about who is your true love and how will you meet them, okay? What phases you might go through, what situations you may go through, okay? Or you may have been in your past or you may go through in your future, alright? As you can see, I have two piles over here. The first is this red crystal and the second is this blue crystal, alright? You can refer for the timestamps below for more information. For now, I'm going to start with this red crystal. So starting with your first card, you have the Four of Cups, okay? So as you can see in this card, this man, he's lying least interested, okay? आप देख सकते हैं ये कार्ड में दिस मैन इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, ओके? सो दिस मे हैव बिन यू इन योर पास्ट. आप पास्ट में एक ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके होंगे वेयर यू फेल्ट स्टक, यू फेल्ट स्टैगनेंट बाय बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद देम, ऑलराइट? यू आर नॉट वेरी हैप्पी, ओके, बाय बीइंग विद देम. Second card that we have is the Six of Swords. The Six of Swords says that you may have moved on, okay? Yes, it says that you have moved on. आप move on कर चुके हो, आपने आपका breakup हुआ है, okay? You have moved on from that person, from that relationship for your own betterment, okay? द नेक्स्ट कार्ड इज़ द फोर ऑफ स्वर्ड्स. तो जैसे ही आपने मूव ऑन किया, यू डिसाइडेड टू रेस्ट एंड रिकवर. आपने इमीडिएटली एक नई रिलेशनशिप में जाने का नहीं सोचा. यू थॉट इट वुड बी बेटर टू रेस्ट एंड रिकवर, टू इम्प्रूव, टू वर्क ऑन योर सेल्स बिफोर मूविंग ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप. Or this is what you may do, or this is what you may have been through, all right? It can apply to both the cases, okay? The next card that we have is the Eight of Cups. So Eight of Cups tells me that आप, जैसे मैंने कहा, you moved on from that person and from that relationship. Eight of Cups indicates that आपने move on किया to the next better thing. So the next better thing and this moving on could represent you moving to another place or a city or a new job. आपने new job ली, आपने जो आपका geographical location change हुआ, okay? आपका overall lifestyle change हुआ, okay? You moved on, you decided to move on something better, okay? So the moon card, the next card that we have is the moon card. So moon card यही warning दे रहा है आपको कि now that you have decided to move on to something better, या आपने नई job join कर ली हो, या आपने सोचा हो कि ओके नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो मून कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है. ये आपको बताना चाहता है कि डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू सी, ओके? डिसेप्टिव पीपल आर देयर अराउंड यू. लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते, या फिर जो सिचुएशन या फिर जो भी एक्सपीरियंस आपको आएगा, जो जैसे दिख रहा है उसको वैसे अज्यूम मत कीजिए. देयर इज़ समथिंग डीपर टू इट, ओके? दिस मून कार्ड इज़ टेलिंग यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए. बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर बिलीविंग समवन एल्स, ओके? वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके? सो जैसे मैंने कहा, यू मूव्ड ऑन टू अ न्यू जॉब या फिर अ न्यू सिटी. वहाँ पे आपको ये इंसान मिलेंगे, आपके ट्रू लव मिलेंगे आपको. आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ पॉजिटिव कार्ड. तो ये जो किंग होंगे जो आपके लाइफ में आएंगे, आपके ट्रू लव, दिस कुड बी अ मेल और अ फीमेल, ओके? सो इफ़ दिस इज़ अ मेल, बहुत ही कॉन्फिडेंट, मैचो एंड मैस्कुलिन एंड अथॉरिटेटिव एनर्जी के होंगे ये. And if you are watching for a female, she could be very confident and charismatic, okay? So किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, फायरी है, पैशनेट है, एंड कंट्रोल, इनका कंट्रोल है इनके इमोशंस पे, थॉट्स पे, एक्शंस पे, ओके? दे बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. ही और शी इज़ गोइंग टू बी अ सेल्फ मेड मैन or a self-made woman that is going to enter in your life, okay? A very beautiful and a positive card. Next card है the page of pentacles. So the page of pentacles represents you and your partner's energy. तो आप दोनों ही बहुत ही hard working है, okay? या फिर ये जो पर्सन होंगे बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे,
जैसे मैंने कहा इन द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक अश्योरेंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सेल्फ मेड होंगे, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। सो दिस पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स उनकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी। सो यू पीपल बिलीव इन हार्ड वर्क। आपको आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, यू बिलीव दैट मैं खुद से अचीव कर लूँगा। यू डोंट डिपेंड ऑन लक, लक होता ही है, बट यू बिलीव मोर इन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। यू पीपल बिलीव इन मेकिंग योर ओन मनी। ओके, so page of pentacles again a very positive card. Pentacles usually represents money, matters, materialistic luxuries. Okay, so again a very positive card. luxury होगा, पैसा होगा आपके पास. Okay, we'll keep it here. Okay, two of pentacles. सो टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ टेलिंग यू टू बैलेंस योर चॉइसेस. आप जो भी लाइफ में चॉइस करेंगे, यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस देम. दिस कुड ऑल्सो मीन आपको आपके इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स को बैलेंस करना सीखना है, बिकॉज यू मे गेट कैरिड अवे. ओके, कैरी अवे होने के चांसेस आपके ज़्यादा है. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस. आपको किसी एक को ओवर पावर नहीं होने देना है अपने आप पे. ऑलराइट, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 10 ऑफ कप्स. ओके, तो ये जो आपके ट्रू लव आपको मिलेंगे, ओके, दिस पर्सन इज़ योर एवरीथिंग. 10 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि यू विल हैव इमोशनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, सोशल फुलफिलमेंट. ओके, हर तरह की फुलफिलमेंट होगी. ओके, फैमिली कंप्लीशन होंगी. मुझे ऐसे लगता है आप में से बहुत लोग काफ़ी अरसे तक सिंगल रहे हो, या फिर यू मे हैव नॉट हैड अ चेंज इन योर लाइफ. ओके, तो ये पर्सन जो होंगे बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे आपके लाइफ में. यू कैन सी दीज पार्टनर्स, दे आर होल्डिंग हैंड्स ओवर हियर. ओके, विद द कप्स दे आर सेलिब्रेटिंग. तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेटरी मोड होगा आपको इस पर्सन के साथ. ओके, बहुत ही हैप्पी रहेंगे आप इनके साथ. ऑलराइट, and your very last card, and again a very positive card, that is the star. The star is assuring you कि जो भी होगा अच्छा ही होगा. Okay, you will have all types of happiness. You just have to believe in the universe and the destiny that it will work for you. It will bring you together with your loved one. Okay, जो भी ट्रू लव आपका है, यू विल मीट दैट पर्सन. एवरीथिंग विल टर्न आउट द बेस्ट फॉर यू. ओके, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. दिस इज़ अ गॉड मदर कार्ड. ओके, सो शी इज़ अश्योरिंग यू कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बहुत ही आपके मन जैसा होगा. ओके, एवरीथिंग दैट यू विश्ड फॉर और एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू हैव. आप चाहते होंगे कि आपकी एक अच्छी फैमिली हो, पार्टनर हो आपके, आपका एक फुलफिलिंग करियर हो. यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू वांट. ओके, सो this was your reading, guys. If you've liked it, please do give it a big thumbs up. Please don't forget to comment, and also please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Now we are going to move on to the next pile. Hello everyone. So for those who chose this blue crystal, all right, these are your cards. The first is the 5 of swords. Okay, so 5 of swords मुझे ये बताता है that you or your person may have been a bully in the past. बहुत ही violent रहा हो आपका life. Okay, and you weren't as happy. Okay, आप देख सकते हैं there were people who have bullied you, they have treated you very badly. Okay, या आपका past में energy रहा चुका होगा, और this is what you may go through before you meet your true love. Okay, द नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा वो है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली हमें ये बताता है दैट यू विल ब्रेक फ्री. ओके, यू कैन सी द स्वॉर्ड, इट इज़ कटिंग थ्रू द स्टर्नअप. तो आप ब्रेक फ्री करेंगे. आप जो भी आप वायलेंट रिलेशनशिप या फिर बुलीड रिलेशनशिप में होंगे, या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा, आपके फैमिली में शायद ऐसा कुछ एनवायरनमेंट हो सकता है, यू विल डिसाइड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट. ओके, the next is this 5 of cups. The 5 of cups usually represents conflicts, insecurities. Okay, focusing on the worst. तो आप उसी में फोकस कर रहे होंगे. इवन इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट, आपको ऐसा लगता है कि ओके, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी देयर इन माई लाइफ.
मेरी लाइफ ऐसी ही है शायद, यू वॉन्ट टू हाइड योर फेस फ्रॉम द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं ये पर्सन अम्ब्रेला के बाहर अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहते हैं ये, ओके। एंड ये जो कप्स जो वाटर पोर कर रहे हैं उन पे दीज आर देयर ओन थॉट्स, जो उनके नेगेटिव थॉट्स है वही उनको ट्रबल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वो अपना फेस हाइड कर रहे हैं दुनिया से, ओके। दिस मे बी यू, और दिस मे बी यू और योर पार्टनर, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आप बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इन योर ओन थॉट्स, जैसे 5 ऑफ कप्स में भी था, ओके। आप बहुत ही ट्रैप्ड फील करेंगे, यू डोंट वांट टू गेट आउट फ्रॉम इट, बट अगर आप चाहते हैं तो आप निकल भी सकते हैं। यू कैन सी दिस पर्सन, दे आर होल्डिंग दो स्वॉर्ड्स, यू हैव अ वे टू गेट आउट, ओके। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द पॉजिटिव कार्ड, ओके। ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यू विल फाइनली मेक दैट डिसीजन ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम दिस जोन ऑफ योर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली यही डिपिक्ट करता है कि बहुत ही लाइफ मेकिंग डिसीजन या लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप लेंगे जो आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। So 2 of Wands is telling me that you will take up new projects, you will work on developing them, on developing yourself, okay. You can see this person how twisted and turned he is, but you will work on improving yourself. You will take those projects, जो भी वर्क प्लेस आपका शायद चेंज हो, कुछ भी हो, जॉब चेंज हो, you may start a new project जैसे मैंने कहा, so you will change yourself, alright. And then you will enter into this Queen of Cups energy. So this again could be you or your person. Queen of Cups मुझे ये बता रहा है that you will progress, you will become this person of kindness, and जो relationships नर्चर करना चाहते हैं, जो नए रिलेशनशिप्स नर्चर करना चाहते हैं, ओके। दिस इज़ हाउ यू विल मीट योर ट्रू लव, ओके, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी इन यू. You will nurture your relationships around, you will find the good in people, you won't give up on the goodness in people. You will believe that yes, everything happens for a reason, and yes, I will find that one person for me. Queen of Cups बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. Queen of Cups ये रिप्रेजेंट करता है कि आप नर्चरर होंगे, आप रिलेशनशिप्स नर्चर करना, मेंटेन करना सीखेंगे. यू विल वैल्यू people despite of the phases that you've been in, or despite of the bad stages of your life you've been in. आपको लोगों ने धोखा भी दिया होगा, but you will believe that no, people are good at heart, and you will try to find out the goodness in everybody around you, okay. With this 8 of Pentacles, you will also master yourself, okay. आप खुद को, जैसे मैंने कहा, इम्प्रूव करेंगे ना जैसे मैंने कहा, ना ही सिर्फ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बट दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी ऑल्सो, ओके. इमोशनली ग्रो करेंगे, मेंटली ग्रो करेंगे, ऑलराइट. And 8 of Pentacles is the card that is telling me you will work on yourselves, you will work on building your career. You can see these tools and the coins that are around it, okay. आप शायद एक नया वेंचर शुरू करें by mastering your skills, alright. This is how you could meet them, alright. Wow, the next card is the Knight of Cups. The Knight of Cups usually बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है. This could be your person. They are going to be the knight in shining armor. I'm so sorry. They're going to be your knight in shining armor. Hopelessly romantic person होंगे बहुत ही. And अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन नहीं आएंगे, या फिर they are not going to be the way you want them to be, but ऐसा कुछ भी नहीं है. They are going to be exactly the way you wish them to be. Knight of Cups बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा. So this person is going to be hopelessly romantic. आपको बहुत केयर करेंगे, ये आपकी बहुत ही अच्छी देखभाल करेंगे. They will provide you everything that you need, alright, and they are always going to be there for you. बहुत गिफ्ट्स लेके आएंगे, बहुत ही लव होगा आपके लिए, and they will always be there for you, okay. This is going to be your true love, this Knight of Cups. And the last card is the Two of Cups. Very promising card.
टू ऑफ कप्स यूजुअली पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करता है, तो यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद दिस नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपके लाइफ के नाइट के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा, न्यू बिगिनिंग्स होंगे, यू कैन सी हाउ दे आर एक्सचेंजिंग देयर कप्स, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा आपके रिलेशनशिप का बहुत, एंड यू ऑल विल ऑलवेज बी हैप्पी टुगेदर, okay? So your true love is going to be a person who understands you on a much deeper level, emotionally, mentally, okay? And you will have a very promising and an abundant relationship with them, okay? So thank you so much for watching. This was your reading. I hope you've liked it. Please don't forget to press the like button, and please do comment in the comment sections below and tell me if this reading has resonated with you. Alright, and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye. Until we meet the next time. Do take care of yourselves. Be positive and stay positive. Thank you so much.